Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear students, let's start our first lesson that is taken from grade 9 biology. The first lesson, introduction to biology. We will define first of all biology. Biology. Biology is a branch of science. Biology is a branch of science in which we study of life. Basically, biology is derived from two words. Biology is derived from two words, bios and logos. Bio means life and logos means study. Means study of life, study of living things, life, living things, living things, living things, plant and animals. Biology is a branch of science in which we study of life, study of plant and animals, study of living things. Biology is derived from two words, bio and logos. Bio means life, logos means discussion. बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग यानी कि जानदार अशिया को स्टडी करते हैं, जानदार अशिया का मुताला करते हैं. इट माइट बी प्लांट एंड इट कैन बी एनिमल्स. ये प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं, यानी कि जानवरों का और पौधों का मुताला किया जाता है अंडर द हेडिंग ऑफ बायोलॉजी. Biology is a branch of science in which we study life. Now we can take this one and explain. Life. What is life? What is life? There is no proper exact definition of life. We can understand, we can study life by its qualities, by its characteristics. हम इसकी खसूसियात की बना पर इसको स्टडी करते हैं, इसका मुताला करते हैं. जिंदा चीजों को हम जब किसी भी जानदार को देखते हैं और उसकी करेक्टरिस्टिक को स्टडी करते हैं, दैट इज लाइफ. ठीक है. सो देन वी विल come toward the next topic, that is the main branches of biology. Main branches of biology. Main branches of bio. So there are three main branches of biology. There are three main branches of biology. First of all, zoology, botany and microbiology. First of all, we move toward zoology. We will study zoology. What is zoology? Zoology, zoo is a word. Zoo is a word. You can often go to zoo and what will be there? Animals. Yes, exactly. Study of animals. These all terminologies are taken from Greek language. ये तमाम जो बायोलॉजी में टर्मिनोलॉजीज या वर्ड्स यूज होते हैं, डिफिकल्ट वर्ड्स यूज होते हैं, ये यूनानी जबान से लिए गए हैं, ग्रीक लैंग्वेज से लिए गए हैं. ठीक है. बायोलॉजी, zoology, botany, microbiology. सही. Now, first of all, define zoology. Zoology is the study of animals. Zoo means animals and logy means discussion of animals. Zoo, animals, study of animals. जब हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, जानवरों को स्टडी करते हैं, दैट इज zoology, अंडर द हेडिंग ऑफ zoology. नेक्स्ट, मूव टुवर्ड बॉटनी. अब हम बॉटनी को डिफाइन करते हैं. बॉटनी, ब्यूटेन, अ वर्ड टेकन फ्रॉम सेम लाइक ग्रीक वर्ड. ठीक है.
ग्रीक वर्ड है, ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया, टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ब्यूटेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन मीन plants. When we study the plant's life, that is botany. Botany is a branch of biology in which we study the life of plants. जिनमें हम plants की life को study करते हैं, that is botany. Botany, butane, butane Greek language से एक word लिया गया है जिसका मतलब है plants, and logi mean discussion. ठीक है, बॉटनी में हम प्लांट लाइफ को डिस्कस करते हैं, प्लांट्स की लाइफ को स्टडी करते हैं। द नेक्स्ट माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो, माइक्रो मीन स्मॉल, स्मॉल, टाइनी। माइक्रो मीन स्मॉल। ऐसे क्रिएचर्स, ऐसे एनिमल्स जिनको हम नॉर्मल आंख से, नेकेड आई से नहीं देख सकते, which we can't be seen with the help of naked eyes. We just see with the help of microscope. An instrument, एक ऐसा आला जिसकी मदद से आप टाइनी क्रिएचर्स को, स्मॉल एनिमल्स को, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, आप उनको देख सकते हैं with the help of instrument, that is microscope. Microbiology, study of microorganism, bacteria, virus, fungi, algae, etc. Microbiology is a branch of biology in which you study the life of microorganism, small creatures, tiny creatures. Okay, let's move toward the next topic that is related to modern advanced biology. ठीक है, जैसे जैसे टेक्निक्स जो है वो डेवलप होती हैं आफ्टर हाई एडवांसमेंट, आफ्टर हाई एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी, biology introduce the other advanced branches, that is the advanced branches of biology. Now we discuss the branches of biology that is set after advancement in biology. Biology में एडवांसमेंट के बाद, आफ्टर 20th century, 20वीं सदी के बाद, टेक्नोलॉजी हैज लेड टू इंट्रोड्यूस द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी आफ्टर एडवांसमेंट इन बायोलॉजी। बायोलॉजी में तरक्की के साथ जो एडवांस ब्रांचेस सामने आई हैं, द फर्स्ट ब्रांच दैट इज मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी, morphology, yes, morphology. Morpho mean form. As we discussed earlier that all these terminologies are taken from the Greek language. यूनानी जबान से ये तमाम अल्फाज लिए गए हैं। ये जो terminologies आपको मोटे मोटे अल्फाज लग रहे हैं, जो आपको थोड़े मुश्किल लग रहे हैं, that is taken from Greek. ठीक है, यूनानी जबान के ये अल्फाज हैं और इनका जब हम अपनी लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस कराते हैं, अपनी लैंग्वेज में इनका मीनिंग बताते हैं, सेम मॉर्फोलॉजी, मॉर्फ मीन फॉर्म, शक्ल, चाहे वो एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो, यानी कि बैरूनी शक्ल सूरत, जैसे आप किसी को देखते हो तो आप जो है उसकी कैरेक्टरिस्टिक बताते हो, दैट इज द एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। मॉर्फ मीन फॉर्म, एंड लॉगी मीन अगेन स्टडी, study of living organism, living creatures, यानी कि living की characteristic को जब हम study करते हैं on the basis of their forms, that is morphology. Morphology is the study of living organism on the basis of their forms. उनकी शक्ल सूरत की बिना पे हम उनको study करते हैं, that is morphology. Morphology divided into two sub branches, external and internal. External morphology and internal morphology. For example, there is a cell. When we study a cell outward, जब हम इसकी external membrane, ठीक है, external layers को study करते हैं बाहर से, that is external morphology, external form. ये oval है, round है, rectangle है, what will be, ठीक है. External,
ठीक है? And when we study inside a cell, that is internal morphology. Inside study, inside morphology. ठीक है? Morphology is divided into two sub branches, external morphology and internal morphology. Now we will discuss the second advanced branch of biology, that is anatomy. Anna. Again, Greek language, taken from Greek language. Term taken from Greek language. Anatomy. Ana mean part. Part mean हिस्सा, section. ठीक है? Ana mean part. जिस तरह हम पार्टीशन करते हैं किसी भी चीज की, फॉर एग्जाम्पल rectangle divided into two halves, this one having two parts. ठीक है? When we study the part of living things, different parts after cutting. ठीक है? कटिंग के बाद जब हम डिस्कस करते हैं लिविंग थिंग्स को, that is anatomy. Anatomy is a branch of biology in which we study of living things on the basis of their parts. ठीक है? उनके पार्ट्स की बुनियाद पे हम उनको स्टडी करते हैं. यानी कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये एक सेल है, रेक्टेंगल सेल है. ठीक है? रेक्टेंगल सेल की जब हम कटिंग करते हैं, आफ्टर कटिंग वी स्टडी इट्स पार्ट इंटरनली. अंदर से हम इसको स्टडी करते हैं. नेकेड आई से भी कर सकते हैं और माइक्रोस्कोप से भी. ठीक है? इट डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ सेल. ये सेल की टाइप पे डिपेंड करता है कि अगर वो ऐसा सेल है जिसको हम नेकेड आई से देख सकते हैं, आम आंख से देख सकते हैं, तो उसको आम आंख से स्टडी करते हैं. अदरवाइज वी कैन सी द माइक्रो सेल विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. ठीक है? एनाटॉमी, स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स, प्लांट एंड एनिमल्स. मतलब ये प्लांट भी हो सकते हैं और इट कैन बी एनिमल्स. प्लांट और एनिमल की स्टडी, इट इज स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्ट की स्टडी. ठीक है? आफ्टर कटिंग द लिविंग थिंग्स वी विल स्टडी देयर पार्ट्स, दैट इज एनाटॉमी. Sorry. The third one is histology. Histos. Greek language. What a unique language. Histos. Histos mean tissue. Student, you already know about the cell, tissue, organ system. So we just discussed histology. After that, when we discuss about cell, then I'll briefly explain cell, tissue, organ system inshallah. Histos. ठीक है? Histology is a branch of biology in which we study the tissue of living things. हम लिविंग थिंग्स को उनकी टिश्यू की बेस पे स्टडी करते हैं. लिविंग थिंग्स की टिश्यू को स्टडी करते हैं. फॉर एग्जांपल, अच्छा, व्हाट इज टिश्यू? टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल्स. जब हम सेल्स के ग्रुप को, टिश्यू को स्टडी करते हैं, दैट इज हिस्टोलॉजी. थर्ड वन, the fourth branch is physiology. Physio mean function. Physiology. Physics is a branch of science in which you can study the function of different things. ठीक है? So physiology, function. Physio mean function and logi mean study. When we study the function of living things, plant and animals, when you study the function of plants and animal cells, that is
physiology. Physiology is a branch of science, is a branch of biology in which we study the function of cell. ठीक. The next will be taxonomy. Taxonomy. The next will be taxonomy. Taxa. Again, Greek language से ये वर्ड लिया गया है. Taxonomy. Taxonomy arrangement. Taxa mean classification. ठीक है. अक्सर स्कूल में अब आप देखें डिफरेंट क्लासेस को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड किया जाता है ताकि हम इजीली जो है अप्रोच कर सकें. वी कैन इजीली अप्रोच डिफरेंट सेक्शंस, डिफरेंट क्लासेस, क्लासरूम्स एज वेल. तो जो अरेंजमेंट होती है टेक्सोनमी, when we arrange plant and animals on the basis of their similarities and differences. जब प्लांट्स को और एनिमल्स को उनकी कैरेक्टरिस्टिक की वजह से डिफरेंट ग्रुप में अरेंज किया जाता है, डिफरेंट क्लासिफिकेशन बनाई जाती है, तो वो क्या है? टेक्सोनमी. टेक्सोनमी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच we can do arrangement. ठीक है, which we study the classifications of animals on the basis of their similarities and differences. ठीक है, taxonomy. Now the next will be genetics. Number 6, genetics. Genetics is my own research subject. Genetics in which we study genes. Genes. This was also taken from Greek language. ये word भी genetics भी Greek language से ही लिया गया है, यूनानी जबान से लिया गया है. ठीक है, genetics. और genetics यानी कि genre. It's mean descendant. ठीक है, origin यानी कि एक चीज का origin क्या है, किस चीज का, living thing का, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो. जब हम जीन्स की बेस पे स्टडी करते हैं तो हम देखते हैं कि इसका ओरिजिन क्या है, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये किससे मीटअप हो रही है. ठीक है, जेनेटिक्स स्टडी ऑफ जीन्स. नाउ अगेन कंफ्यूजन रेज इन योर माइंड. व्हाट इज जीन्स? जीन्स इज अ बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. जीन्स इज अ बेसिक यूनिट ऑफ inheritance. Those characters which transmit from our ascendant. ठीक है, descendant. जो हमारे descendant से जो characteristic हमें मिलती हैं, that is inheritance. और ये जो इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स का जो बेसिक यूनिट है दैट इज जीन्स. ठीक है, जीन्स इज अ बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस. ठीक है, और जब हम जीन्स को स्टडी करते हैं किस ब्रांच में, बायोलॉजी की किस ब्रांच में? जेनेटिक्स में. जेनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी जीन्स, विच वी स्टडी इनहेरिटेंस कैरेक्टर्स दैट ट्रांसमिट. ठीक है, फ्रॉम आवर डिसेंडेंट. ठीक है, जो हमारे डिसेंडेंट से हमें मिलती हैं, हमारे आबाओ अजदाद से, हमारे फोरफादर्स से, हमारे बाप दादा से जो कैरेक्टर्स हम में ट्रांसमिट होती हैं, शो होती हैं. फॉर एग्जांपल यू कैन सी डिफरेंट प्रैक्टिसेस, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट फॉर्म, डिफरेंट फंक्शंस ऑफ आवर बॉडी पार्ट्स. फॉर एग्जांपल आई शेप, लिप शेप, चीक शेप, हेड, हाइट एंड एटसेट्रा. These all characters are transmitted from our आबाओ अजदाद, descendant. हमारे आबाओ अजदाद से जो कैरेक्टर्स हम में ट्रांसमिट होती हैं, हम में जाहिर होती हैं, ट्रांसफर होती हैं, उनको हम स्टडी करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ जेनेटिक्स. एंड जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. ठीक है, आई होप यू हैव नो कंफ्यूजन. The next modern branch of modern biology, that is developmental biology.
नंबर 7, developmental biology. Development क्या होती है? Development means progress. Developmental biology in which we study an embryo. Embryo को स्टडी करते हैं. Developmental biology में क्या करते हैं? Embryo की स्टडी होती है. Embryo. Again, the same confusion raised in your mind. What is embryo? Embryo, zygote. Embryo क्या है? Embryo, when sperm and egg unite to each other. जब sperm और egg की यूनियन होती है, जब sperm और egg का मिलाप होता है, तो एक फॉर्म, एक शक्ल, ठीक है, एक न्यू फॉर्म बनती है, दैट इज एम्ब्रियो. फिर एम्ब्रियो में एडवांसमेंट होती है, डेवलपमेंट होती है, और आपके पास एक न्यू अडल्ट, न्यू, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, न्यू फॉर्मेशन आपके पास आती है, न्यू वंस आपके पास, न्यू ऑफस्प्रिंग आपके पास आते हैं. दैट इज developmental biology. These changes are discussed under the heading of developmental biology. Gradually change, आस्ता से ये जो change आप स्टडी करते हो एम्ब्रियो में, ठीक है, एडल्ट तक, यानी कि जब एक अंडे के अंदर अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, मीटअप होता है किसका? स्पर्म का. फॉर एग्जाम्पल एग एंड स्पर्म. व्हेन स्पर्म मीट एंड एग, जब एक स्पर्म एग से मीटअप करता है, ठीक है, यानी कि एग से मिलता है, तो एग क्या हो जाता है? फर्टिलाइज हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है, एग को स्ट्रेंथ मिल जाती है. दैट इट विल टर्न इनटू एन एम्ब्रियो. फिर उस एम्ब्रियो के अंदर ग्रेजुअली चेंजेस आती हैं, और एक टाइम पीरियड के बाद, एक खास टाइम पीरियड के बाद, डिफरेंट एनिमल्स का एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है, ठीक है. जिस तरह आप चिक को देखो, उनका भी एक खास टाइम पीरियड होता है, उसके बाद एक न्यू चिक प्रोड्यूस होता है, ठीक है. दैट इज डिस्कस्ड अंडर द हेडिंग ऑफ डेवलपमेंटल बायोलॉजी. द नेक्स्ट विल बी पैलेंटोलॉजी. नंबर 8, पैलेंटोलॉजी. Paleontology study of fossils. Study of, अच्छा, fossils क्या होते हैं? Fossils, those materials which obtained after digging से, खुदाई से, जो चीजें, जो बचा खुचा मटेरियल एनिमल्स का इंट्रोड्यूस होता है, इन्वेंट होता है, दैट इज फोसिल्स. जिस तरह डायनासोर्स की डिफरेंट स्कल, बोन, डिफरेंट जो इंट्रोड्यूस हुए हैं, दीज ऑल आर फोसिल्स. और फोसिल्स की जब हम स्टडी करते हैं, आफ्टर द स्टडी ऑफ फोसिल्स we can characterize the qualities of that animals, ancient animals. उन पुराने जो एनिमल्स की हम कैरेक्टरिस्टिक को कैरेक्टराइज करते हैं अंडर द हेडिंग ऑफ पैलेंटोलॉजी. यानी कि पैलेंटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी फॉसिल्स. फॉसिल्स को स्टडी करते हैं किसमें? पैलेंटोलॉजी में. सो द नेक्स्ट विल बी बायोटेक्नोलॉजी. Number 9, number 9, biotechnology. Bio means life, technology means different techniques, different advancements which are shown in different branches of science, as well as in biology. Biology में different techniques को इंट्रोड्यूस करा के न्यू चीज जो है वो प्रोड्यूस की जाती है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी. फॉर एग्जाम्पल, आप डिफरेंट किस्म के फ्रूट्स देखते हैं, डिफरेंट एनिमल्स में चेंजेस देखते हैं. जब जिस तरह फॉर एग्जाम्पल आपने म्यूल देखा होगा, म्यूल, वो जब डोंकी और हॉर्स का मीटअप कराया जाता है, यानी कि दो डिफरेंट स्पीशीज को, उनका जब मीटअप कराया जाता है, वो एक दूसरे को फर्टिलाइज करते हैं, उनका मीटअप होता है, तो जो न्यू ऑफस्प्रिंग बनता है, दैट इज बिटवीन, वो एग्जिस्ट करता है
डोंकी और हॉर्स के बिटवीन एग्जिस्ट करता है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। ये बायोटेक्नोलॉजी की प्रोडक्शंस हैं, डिफरेंट टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस करा के डिफरेंट चीजें प्रोड्यूस की जाती हैं, ठीक है, फॉर द बेनिफिट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, ठीक है, यानी कि फैसिलिटेट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करके, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज को इस्तेमाल करके न्यू ऑफस्प्रिंग, न्यू मटेरियल इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट विल बी नंबर 10, sorry, cell biology. Cell biology. Cell is a basic structural and functional unit of life. Cell is a basic structural and functional unit of life. यानी कि जिंदगी की जो एक बुनियादी इकाई है वो क्या है, वो सेल है। जब हम किसी भी एनिमल्स को या प्लांट लाइफ को स्टडी करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, मतलब बहुत ही लोअर जाके जब हम एक लिविंग को स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके पास एक लिविंग का सेल है, सॉरी टिश्यू है, और टिश्यू के अंदर ये नंबर ऑफ सेल्स हैं। जब हम एक सेल को, these are cells or single is cell, when we study a single cell, that is cell biology. The study of living things, the study of cells, that is cell biology, and different techniques are introduced in cell biology as well. The next will be number 11, sociobiology. Sociology, सोसाइटी को स्टडी करना, सोसाइटी में डिफरेंट लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, द इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अंडर द हेडिंग ऑफ सोशियोबायोलॉजी, ठीक है। Sociology is a branch of biology in which we study the interaction between living and non-living as well as between living things, ठीक है। The next will be parasitology. Number 12, parasite. Parasitology. Parasite. What is parasite? Parasites means are those organism, those creatures, वो creatures हैं, वो living things हैं जो दूसरी living things पे रहते हैं। They live, they exist, ठीक है। They can't be survive they can't be survive without that living organism. For example, lices, जुएं, जिस तरह सर में जुएं होती हैं, फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं, स्टोमक के अंदर, आपके मैदे के अंदर डिफरेंट बैक्टीरिया होते हैं, दैट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एनिमल्स। इस तरह जो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो हार्मफुल होते हैं और कुछ होते हैं बेनिफिशियल होते हैं, ठीक है। लेकिन द हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट एग्जिस्ट ऑन any other living organism, जो किसी भी दूसरे living organism पर रहते हैं, ठीक है, that is parasite, and parasitology is a study of parasite, ठीक है। The second last branch of biology, that is pharmacology. Pharmacon. Pharma means drugs, study of drugs and its effect on living organism. The study of drugs and its the heading of pharmacology. Pharmacology is a basic branch of biology in which we study different types of drugs and their effects on living organism. And the last one is molecular biology. Molecular biology.
Molecular biology is a branch of biology in which we study the organic molecule which constitute cell and its organelles. Cell and its organelles. For example, basically cell membrane, nucleus, cytoplasm. ठीक है? Molecular biology is a branch of biology in which we study cell and its organelles. यानी कि सेल को और उसकी ऑर्गेनेलिस को, उसके डिफरेंट पार्ट्स को स्टडी किया जाता है अंडर द हेडिंग ऑफ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स. सो दिस इज द लास्ट branch of biology. Now inshallah in next video we will discuss about the relationship of biology with other branches. ठीक है? और hope you will understand well and benefit from my lesson. और मेरी कोशिश होगी कि मैं कोई भी टॉपिक स्किप ना करूं, क्योंकि वैसे तो मैं स्पेसिफिक टॉपिक भी डिस्कस कर सकती हूँ, लेकिन मेरी अपनी है वो कोशिश है वो यही है कि मैं एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में तमाम जो है वो लेसन अपलोड करूँ, ताकि वो तमाम स्टूडेंट जिनको किसी भी टॉपिक में कोई भी छोटा मोटा मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, कोई भी डिफिकल्टी है, तो वो सॉर्ट आउट हो सके. इंशाल्लाह यू विल अंडरस्टैंड एंड बेनिफिट इंशाल्लाह. And I hope you will like, share and subscribe my channel, and don't forget to press the bell icon so you can easily receive the upcoming notification of my new video easily inshallah. Thank you so much.